A very good evening and Jai Hind to all of you. I am Vasudha Singh and I welcome all of you once again onto Defense Mania, guys. So this is a very important video as far as your territorial army examination is concerned, as well as today is 24th of September. And yes, your paper for territorial army, your examination for territorial army is is on 26th of September 2021. Matlab day after tomorrow. Matlab परसों you will be having your examination. So this video is specifically going to concern about your last minute preparations. कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको पेपर में क्या विजन लेके जाना चाहिए, आपको पेपर में क्या मोटिवेशन लेवल होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए. So all of these small tidbits I will be covering in this video, and this is basically specifically for territorial army. All right, so let's get started with it, guys. So yes, firstly, a very important thing that we are going to serve our nation, so we should feel very proud that we guys are Indians and we should definitely serve our nation in the best possible way. And yes, वेरी फर्स्ट पॉइंट गाइज, आपका ये जो वीडियो है, स्पेसिफिकली दिस वीडियो विल प्रोवाइड यू small points so that it will help you in your examination. That is the reason it is basically your last minute preparation. कि last minute पे आप ऐसा क्या करोगे, मान लो बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर लिया है आपने एंड यू आर स्टिल डाउटफुल अबाउट योर प्रेपरेशन कि हाउ टू गो अबाउट इट एंड whether you are underconfident or you're overconfident, but exactly you need to be confident enough. So exactly this video will definitely help you in your last minute preparation, and it will definitely improve your game, and it will definitely make your game as a game changer. Okay, so the very first point, guys, the very important point is follow the guidelines. Guidelines को follow करो. the way I am specifically concerned about the guidelines जो आपको पेपर से पहले प्रोवाइड करनी है. ठीक है, अब देखिए गाइस, सिमिलरली दिस इज एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन. इट विल बी कंडक्टेड इन पेपर 1 एंड पेपर 2. टू फेजेस है इसके. सो यू हैव टू मेक इट श्योर आपका माइंड फ्री हो. सबसे पहले आपका माइंड फ्री होना चाहिए, देन यू हैव टू गो एंड अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशन. दैट्स वेरी क्लियर. ठीक है, और माइंड क्लियर कब होगा, जब आपके पास सारी गाइडलाइंस जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया है. Your individual portal for territorial army, they will be providing you the admit card, they will be providing you various guidelines that you have to follow. So it's very important कि आपका माइंड फ्री रहे. जनरली क्या होता है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आप गाइडलाइंस को पढ़ते हो, कभी गाइडलाइंस को कभी नहीं भी पढ़ते हो, ऊपर से देख लिया ऑन अ वेरी सुपरफिशियल लेवल. इट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, एंड वहां जाके आप कुछ मिस ऑन कर लेते हो, मे बी योर आइडेंटिटी, मे बी something else. You definitely miss on to certain things if you are not well prepared. All right, so आपको क्या करना है, आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा ऑन योर इंडिविजुअल पोर्टल. जो आपका, जिस पे आपने लॉग इन किया था, आपने पासवर्ड जनरेट किया होगा, यूजर नेम होगा आपका. यू हैव टू जस्ट लॉग इन टू दैट एंड यू हैव टू download your admit card, as well as you have to make it sure whatever is attached except the admit card, you need to read it. If you are not printing it out, just read it, so that आपके दिमाग में एक पॉइंट है कि मुझे ये लेके जाना है, मुझे सैनिटाइजर लेना है, आई हैव टू cover myself proper with mask, I have to, maybe you have to take a face shield also, you have to carry a water bottle, all of these instructions, the identity card that is valid, everything. Because why I'm saying this, because this will help you to free your mind. Generally बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, और जब आपको कोई पूछता है कि यार दिस थिंग इज नॉट अवेलेबल, वेयर इट इज, जब आपकी वेरिफिकेशन होती है वहां जाके, सो जनरली क्या होता है, अगर आप कुछ चीज स्किप ऑन करते हो तो उस टाइम पे यू गेट कंफ्यूज, आप हड़बड़ाहट में यू आर नॉट एबल टू, योर मोरल गेट्स वेरी डाउन. ठीक है, आपको हमेशा पेपर के टाइम भी यही लगेगा कि आई हैव डन दिस मिस्टेक. सो जस्ट टू फ्री योर माइंड, just to be very relaxed, just to have a very calm mind throughout your examination, please make it sure that you follow all the instructions except your admit card. Admit card तो आपने लेके जाना है, but read all the instructions very carefully, and उसको beforehand ही रख लो. Whatever they have asked you, please carry that in a very specific way, और उसको अभी आज ही कर लो, so that कल आपको प्रॉब्लम ना पड़े, परसों तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना पड़े. All right, so the second point, guys, is very important. This is something that
definitely uplift your game. So very first thing is be prepared, and the second thing is the mindset. It's very very important. अगर आप किसी को भी देखेंगे, अगर आप किसी टॉपर को भी देखेंगे, they are persons with good intelligence but they have a great mindset. बी प्रिपेयर्ड एंड आपका माइंडसेट, मतलब आपकी प्रेपरेशन, आपका जो प्रेपरेशन पार्ट होता है, आपका जो प्रेपरेशन पार्ट है और आपका जो माइंडसेट होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मान लो आपने प्रिपेयर किया है बट आपका माइंडसेट, आपका आपका जिस दिन पेपर है, आपका माइंडसेट इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट. ठीक है, आपके माइंड में यू आर स्टिल हैविंग डाउट्स कि वैसे ये गलत ना हो जाए, या मैं कुछ गलत ना कर दूं, या यू आर, or you are just if afraid of the failure, whatever is there, it is basically your mindset. अगर आप अपने दिमाग को उस दिन सुबह जाके बोलोगे कि okay fine, I have prepared really well and I'm going to give my best. I don't know what will happen in the examination, but I will take my examination in a very good way. I will not stress myself. अपने आप को स्ट्रेस नहीं करोगे, जो चीज आएगी वो करोगे, जो चीज नहीं आएगी उसको स्किप करोगे या उसको ट्राई करोगे करने का. यू आर नॉट टेकिंग दैट मच स्ट्रेस ऑन टू योर माइंड. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको प्रेपरेशन तो होना चाहिए. आपका प्रेपरेशन काफी देर से एग्जामिनेशन का फॉर्म निकला है. आई एम डैम श्योर दैट यू गाइस हैव रियली प्रिपेयर्ड वेल, बट आपका माइंडसेट, आपका दिमाग उस दिन, आपका what you are thinking that day is very very important. It is I guess the most important part that you have to carry. देखो, अगर आपके प्रेपरेशन 50% भी है ना, अपना माइंडसेट 50% लेके जाओ, अपना माइंडसेट अच्छी तरह से लेके जाओ, सो दैट पेपर में जो चीज आती है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो. यू आर नॉट डाउटफुल ऑन दैट. बट इफ यू हैव ओवर प्रिपेयर्ड इट, तो जनरली आपका माइंडसेट ओवर कॉन्फिडेंट होता है. दैट ऑल्सो डजंट हेल्प. और ओवर कॉन्फिडेंस में यू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आउट देयर, कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग कराते हो. So your mindset has to be very very okay. And yes, although you have prepared really well, you have to make it sure that you are comfortable with yourself. And in the next step, I'll tell you that how will you do that. So please make it sure that your preparation part and your mindset is in balance, is in sync with each other. All right, the very first thing that everyone out there needs to understand, that you need to have your vision. आपका विजन क्या है? VISION, that what is your vision? आप ये पेपर क्यों दे रहे हो? आपने कभी ये पेपर अप्लाई करने से पहले, जब भी आपने ये पेपर अप्लाई किया है, यू माइट हैव थॉट कि ओके फाइन, this is one thing. I am looking towards territorial army, I am looking towards a career in defense, so definitely this is my vision. कुछ ना कुछ तो आपने रखा ही होगा दिमाग में, obviously. Even you're getting motivated by somebody, or you're seeing something that drives you to join the defense forces, that is exceptly yours. That is, हर एक इंडिविजुअल का विजन अलग होता है why they want to join the defense forces. But please, इसको भूलो मत. इसको भूलो नहीं कि आप क्यों जा रहे हो पेपर में. अगर पेपर में जा रहे हो तो प्लीज मस्ती मारने मत जाओ कि हाँ इस बारी पेपर आ गया तो इस बारी देख के आते हैं कि क्या होता है. डू नॉट डू दैट. ठीक है, अगर पेपर फॉर्म भरा है, इफ यू हैव फिल्ड 200 रुपीज, इट इज, प्लीज मेक इट श्योर दैट यू हैव अ वेरी क्लियर विजन कि मैं ये एग्जाम क्यों दे रहा हूँ या दे रही हूँ. एंड उसके बाद you have definitely prepared really well. And yes, you have to give your examination in a positive way. ठीक है, अगर प्रिपेयर किया है उसको प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मिक्सअप मत करो. माइंड अपना काम रखो, कूल रखो. ठीक है, सब लोग पेपर दे रहे हैं. दिस पेपर इज कंडक्टेड पैन इंडिया, हर एक स्टेट में ये पेपर कंडक्ट हो रहा है. So please make it very very aware of yourself that yes, you are having a lot of competition, but please maintain a very very clear focus on your vision कि ये पेपर मैंने भरा क्यों, ये पेपर मैं दे क्यों रहा हूँ, why I am going to spend my 4 hours, why I am going to give paper 1 and paper 2 on 26th of September. उस चीज को प्लीज विजुअलाइज कर लो एंड उसके साथ अपना माइंड को उस तरह लेके चलो. ठीक है, मजे मजे के लिए पेपर मत दो कि इस बारी देख के आते हैं कि क्या होता है. डू नॉट डू दैट. ऑल राइट, इवन इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग, प्लीज मेक इट श्योर दैट you at least try doing that particular question. If you are not able to solve that question, skip it. It's okay. आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ and where exactly I need to get myself more on. All right.
द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आई गेस हर एक पेपर में होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल, जैसे जैसे आपका पेपर पास आता है, आपको आपका स्ट्रेस बढ़ता है कि why exactly you're stressful because examination है. सिंपल सी बात है, एग्जामिनेशन मतलब आपने कुछ प्रिपेयर किया है, आपको वहां जाके देना है, एंड इट इज नॉट इन योर हैंड कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं. क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं अंडर दैट सिलेबस, बट वन थिंग दैट इज इन योर हैंड इज योर माइंड, is your act is are basically your actions. आपका दिमाग और आपके actions आपके हाथ में है. So the very important factor is guys, अपने आप को stress free रखो, ठीक है, मजे से रहो. आज का दिन प्रिपेयर कर लो अच्छी तरह से, जो रिवाइज करना है, जो भी कुछ करना है कर लो. कल मजे से रहो, so that your mind is very very calm. Your mind is okay, fine, this is a paper, I just have to go and I have to give my best. So that is very very important. अनड्यू प्रेशर मत लो, जितना पेपर में आता है उसको अच्छे से करो, अपना 100% दो. एंड यस, प्लीज डू नॉट ट्रबल योर, डू नॉट स्पॉइल योर पेपर बिकॉज ऑफ अननेसेसरी स्ट्रेस. कि मेरे को, मैं फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ये चीज आती है बट पेपर में नहीं निकल रही है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम इन वर्क, बट यू हैव रियली प्रिपेयर्ड, घर पे आपने काफी अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, बट पेपर में वो चीज निकल नहीं रही है. होता है, बहुत बहुत बारी होता है, बट दैट इज द पॉइंट दैट उस टाइम पे आपको अपनी हेल्प करनी है, बिकॉज नो बडी विल बी हेल्पिंग यू. इधर द पर्सन ऑन योर लेफ्ट और ऑन योर राइट विल नॉट हेल्प यू. यू जस्ट हैव टू हेल्प योर सेल्फ, ठीक है. हेल्प कैसे करोगे कि जस्ट से टू योर सेल्फ, ओके फाइन, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, आई विल गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा या करूंगी, टाइम बच रहा है, जब टाइम बच जाएगा मेरे पास, मैं इस क्वेश्चन को फिर से करूंगी. अननेसेसरली स्ट्रेस उस टाइम पे नहीं लेना है, बिकॉज क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन स्पॉइल होता है तो आपके 10 क्वेश्चन और स्पॉइल हो जाते हैं. इट इज जस्ट अबाउट रिलेटिंग योर कॉन्फिडेंस. एक क्वेश्चन ठीक हुआ, उसका कॉन्फिडेंस दूसरे क्वेश्चन पे लगाओ, फिर दूसरा क्वेश्चन ठीक हुआ, उसका कॉन्फिडेंस तीसरे क्वेश्चन पे लगाओ. सो दिस इज बेसिकली अ लिंक ऑफ योर कॉन्फिडेंस. अगर एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन में अपना कॉन्फिडेंस डाउन रखना है. यू हैव टू गो विद द फ्लो. एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, ओके फाइन, आई स्किप ऑन टू द सेकंड वन, ओके फाइन, सेकंड भी नहीं आ रहा, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा या करूंगी. करते चलो, एंड प्लीज डू नॉट गिव योर सेल्फ अनड्यू प्रेशर और स्ट्रेस. इट्स ओके, it's an examination, very wonderful examination. Please make it sure that you have control over your mind. All right. Yes. आज का दिन is very very important guys. You have studied a lot of things. The second point is that you have studied a lot of things. Obvious सी बात है, examination है जिसमें आपका English आएगा, reasoning आएगा, mathematics and your general studies, general knowledge will be there. So obviously you have studied a lot. I must say that, and I am damn sure कि आपने बहुत अच्छी तरह से prepare किया होगा. But one thing you need to do, I think this is very very important, very very important. जो चीज आपने पढ़ी है ना, उसको एटलीस्ट एक बार दो बार ब्रश अप कर लो. मतलब ब्रश अप एज इन उसको रिवाइज करो. दिमाग में ऐसा घपला बना है. फॉर एग्जाम्पल दिमाग में स्टडीज का है, मैथमेटिक्स का है, रीजनिंग का है, इंग्लिश का है, जीके का है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन टू योर माइंड, एंड यू हैव ऑब्वियसली यू हैव somewhat you have this thing in your mind कि यार पेपर है मेरा and I have to perform really good, and I have to give time to each and every section properly. Everything goes on to your mind. One examination, एक examination में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपका success rate determine करती हैं. Firstly, it is your confidence. Just confidence, not underconfident or being overconfident. Your confidence, your preparation, your revision, your mindset कि आपका उस दिन आपका दिन कैसा चढ़ा है. आप दिन सुबह उठ के आपने अपने आप को क्या बोला है कि ओके फाइन, दिस इज माय पेपर, आई एम गोना गिव माय बेस्ट, और पता नहीं क्या होगा पेपर में, वेदर आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट. सो हर एक थॉट, आपका थॉट उस दिन डिटरमाइन करता है कि आपका एग्जामिनेशन कैसा जाएगा. मान लो किसी किसी कैंडिडेट ने 50% प्रिपेयर किया है, बट उसका माइंडसेट बड़ा जबरदस्त है कि ओके फाइन, 50% जितना अटेम्प्ट किया है वो तो मैं अच्छे से करके आऊंगा या आऊंगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई मेक श्योर आई अटेम्प्ट क्वेश्चंस, I'll definitely attempt that. So that person is having a very vibrant mindset, and a person who has all like prepared 100% for the examination, and if in the morning of that particular day, if he or she says to herself or himself, I don't know what will happen in my examination, I'm just going to give my examination,
and you are doubtful about yourself, so please do not do that. Mindset बहुत ज़्यादा important है, but yes, you need to revise the things. बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, please make it sure that you revise it properly. एक बारी उसको देख लो, आपके माइंड में वो चीज़ फिर से याद आ जाएगी. मे बी परसों वो क्वेश्चन आ जाए, you will be able to do that within seconds. All right, so your revision is very very important because हमारी memory में हर एक चीज को ब्रश अप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, so let's move on to the next part, guys. The next part is yes, know your strengths. extremely important. आपको पता होना चाहिए कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ. या आपके एग्जामिनेशन में you're having mathematics, you're having reasoning, you're having English, and you're having GK plus GS. ठीक है, आपके पास ये 4 सब्जेक्ट्स हैं. आपका पेपर 1 विल बी कंसिस्टिंग ऑफ योर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग. 2 घंटे का पेपर है. आई टेल यू प्रॉपर्ली इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड. पेपर 2 इज ऑफ योर इंग्लिश एंड योर जीएस पार्ट. बट आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है. मे बी इट इज मैथ्स, मे बी इट्स रीजनिंग, मे बी इट्स इंग्लिश, मे बी इट्स जीके और जीएस, वट एवर. हर एक इंडिविजुअल का अपना स्ट्रेंथ अलग होगा. प्लीज मेक इट श्योर दैट एटलीस्ट आज या कल आप अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो where there is no noise. आपको पता होगा कि मुझे अपना पेपर कैसे देना है, एंड यू आर वेरी वेल अवेयर कि मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रेंथ है. पहले मैं मैथ्स के क्वेश्चन करूंगा. रीजनिंग मुझे नॉर्मली आता है. सेकंड उसमें आई अटेम्प्ट माय रीजनिंग क्वेश्चंस. ऑलराइट, एंड आल्सो यू हैव टू मेक इट श्योर कि सब टॉपिक्स जो आपके मैथ्स के जो सब टॉपिक्स हैं, इट इज वेरी वेरी इट इज वेरी वेरी नॉर्मल कि आपको कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से आते हैं, कुछ टॉपिक्स इतने अच्छी तरह से नहीं आते. इट्स ओके, बट यू हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि जो टॉपिक्स आपको जल्दी आते हैं उनको आप जल्दी से कवर कर लो. आपको जो टॉपिक्स अच्छे से आते हैं उनको आप जल्दी से कवर करो विदाउट एनी मिस्टेक्स. वेयर जो आपको टॉपिक्स नहीं आते हैं उनको लास्ट के लिए रखो. दिस इज हाउ यू प्लान, दिस इज हाउ यू स्ट्रेटेजाइज एनीथिंग. All right, so please make it sure that you know your strengths, even in maths, even in reasoning, even in English or GK or GS. All right, so yes, this is very very important. The next point is that you need to divide your time. You need to divide your time. Exam के time में हड़बड़ाहट नहीं करनी है, अपना दिमाग शांत रखना है. जितना शांत रखोगे उतना अच्छा पेपर होगा. जितनी हड़बड़ाहट करोगे उतना you will lose your confidence, उतना you will lose on to your questions and your marks. पेपर से बाहर आओगे, you will not be happy then. So please make it sure that you're having a very calm mind. Even if you have prepared well, even if you haven't prepared well, please make it sure that you have a calm mind. A question is coming, okay fine, this is just a question and I am going to attempt it in the best possible way. ठीक है, प्लीज अपने आप को शांत रखना so that your examination goes on really well. After that, please make it sure in the examination, during the examination, please divide your time. Divide your time. For example, if you are having mathematics question, अगर आपके पास maths के questions हैं, आपके पास, ठीक है, 50 questions will be coming. Obviously, 1 घंटे का आपका मैथ्स का पेपर होगा, ठीक है, 50 questions will be coming. मान लो 25 questions वैसे हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं. So please make it sure कि आप उनको बहुत जल्दी करो, ठीक है, एंड उनको करेक्ट करो. ऑलराइट, बट जो आपको 25 questions नहीं आते हैं, प्लीज अपना टाइम मैनेज करो. It's very very important because the fact is that everyone is attempting the paper. All right, and it is a pan India paper, so competition ज़्यादा है. So please manage your time, please divide your time according to the subtopics that you know, according to the topics that you do not know also. ठीक है, it's very very important that you manage your time, otherwise you will miss on to a lot of questions that you are well aware of, and उसके बाद you will, you know, for example, मैथ्स में आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको 25 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं और 25 नहीं आते हैं. ठीक है, आपका माइंडसेट है कि हाँ मैं मैथ्स के 25 क्वेश्चन अच्छे से करूंगा, बट फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में आप फंस जाते हो और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो. तो क्या होगा, बाकी क्वेश्चंस आप मिस ऑन कर दोगे, आपका मैथ्स का सेक्शन हो गया स्पॉइल. ठीक है, उसकी वजह से आप क्या करोगे, रीजनिंग का भी स्पॉइल कर दोगे, इंग्लिश एंड जीके, बिकॉज 4 सेक्शंस हैं एंड चारों को 1-1 घंटा मिला है. बट यू हैव टू मेक इट श्योर कि अगर नहीं आ रहा है, अगर एक चीज स्पॉइल कर रहे हो, एटलीस्ट 3 चीजों को बैलेंस कर लो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन योर रिटन एग्जामिनेशन का थोड़ा सा मैंने पैटर्न बताया है. ठीक है,
पेपर 1 ऑब्वियसली यू आर वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ, इसको थोड़ा सा हम डीप में टच करते हैं, ठीक है। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे, ठीक है, सेम सेंटर सेम डे। पेपर 1 में आपका रीजनिंग और मैथ्स होगा। रीजनिंग में आपको 1 आवर मिलेगा एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 50, मतलब एक क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क्स एंड पेपर 2 इज फॉर योर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, योर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 50 एंड टोटल मार्क्स इज 50, सिंपल है, ठीक है। सो आपको सेपरेटली टाइम मिलेगा एंड यू हैव टू मेक इट श्योर कि आपके रीजनिंग के सब टॉपिक्स के बारे में आपको पता हो, आपने प्रिपरेशन अच्छे से की हो एंड यू आर वेल अवेयर दैट वेयर एग्जैक्टली माई स्ट्रेंथ्स आर, वेयर एग्जैक्टली माई वीकनेसेस आर। जो चीज नहीं आती है उसको स्किप करो फॉर टाइम बीइंग, जो चीज आती है पहले उसको अटेम्प्ट करो, ऑलराइट। और उसका कॉन्फिडेंस, जब आपका कोई चीज ठीक होता है उसका कॉन्फिडेंस उस चीज पे लगाओ जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज बेसिकली अ लिंक ऑफ योर कॉन्फिडेंस, ऑलराइट। द नेक्स्ट इज योर जीके। जीके का भी सेम पैटर्न है गाइस, बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, आपकी मार्किंग स्कीम कैसी है। आपका नेगेटिव मार्किंग है, आपका नेगेटिव मार्किंग है पेपर में। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर कैंडिडेट्स गेट अ नेगेटिव मार्किंग एज अ penalty, all right? When candidates attempt the question correctly, they score 1 marks, all right? And this is a very tricky thing. The third point and the fourth point is very very tricky, ठीक है। हर एक सेक्शन में your maths, your reasoning, your English and your GK part आपको मिनिमम 40% स्कोर करना है। 40% मैथ्स में, 40% रीजनिंग में, 40% इंग्लिश में, 40% जीके में, आपको मिनिमम ये स्कोर करना ही करना है, ठीक है, सो दैट आप क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। whereas the overall qualifying marks in the examination is 50%. कट ऑफ वो लोग बताएंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा, but for every section you have to score at least 40% of that particular section. This is quite tricky, so please make it sure कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो, आपके करेक्ट आंसर्स अच्छे हो, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैज टू बी गुड। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करो, जो चीज नहीं आती जस्ट स्किप दैट, बिकॉज अगर 40% मैथ्स में लोगे, रीजनिंग में लोगे, इंग्लिश में लोगे और जीके में इंडिविजुअली लोगे, तब यू विल बी एबल टू क्वालिफाई, ठीक है। अब मान लो जीके में और वेरी वेरी गुड 90% स्कोर किया है, यहाँ पे इंग्लिश में भी you have scored 70%, रीजनिंग में you're okay, you have scored 60%, but मैथ्स में मान लो 30% स्कोर किया, तो आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन नहीं, मतलब यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज, आपसे पेपर पास नहीं हुआ है। सो प्लीज मेक इट श्योर कि आप 40% हर एक सेक्शन में स्कोर करो, ठीक है। एंड यस प्लीज मेक इट श्योर कि नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करो, करेक्ट आंसर्स ज्यादा करने हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 40% रूल प्लीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी जनरल ऑल्सो, प्लीज कीप काम, माइंड शांत रखना, दिमाग शांत रखना, ठीक है। I am seriously telling you guys, whatever your whatever your circumstances will be during the examination, please make it sure that you are calm. गलत हो गया, okay fine, next गलत नहीं करूंगा या करूंगी, okay fine, ये question नहीं आता, I'll skip on to the next one. इस पे फिर से आती हूँ, ठीक है। उसके बाद please believe in yourself that yes, I am capable enough. You are mature enough, you are capable enough. Please, this is very very important. I guess this part, believe, to keep calm and to believe in yourself, will be there in every field, will be there in every field of your life. If you believe in yourself, you will do things, you will do wonders in fact. But if you're not believing, you're not saying it to yourself, okay fine, अगर आप ये चीज नहीं बोलते हो, if you don't say it to yourself कि I'm not sure that whether my examination will be okay or not, please do not do that. एक एक जो जिस इंसान ने, कैंडिडेट ने, जिसने बहुत कम प्रिपेयर किया है बट उसका माइंड शांत है, उसको अपने ऊपर भरोसा है, वो अपने ऊपर भरोसा करता है कि हाँ मैं कर लूंगा या कर लूंगी, वो सही में कर जाता है, ठीक है। जिस कैंडिडेट ने बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया बट स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन द माइंड कि पता नहीं एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, that person is making herself or himself into trouble. So please make it sure you have a good mind, you keep your mind calm, ठीक है। अपने अपने हर एक क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट क्वेश्चन पे डालो, अपने हर एक क्वेश्चन का, अपने हर एक आंसर का कॉन्फिडेंस डालना है, बट डू नॉट मेक योर डाउट्स कम इनटू योर रियलिटी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शांत रखो, नहीं आता ओके फाइन, नेक्स्ट पे आ जाओ,
फिर से वापस उस क्वेश्चन पे चले जाओ एंड बिलीव इन योरसेल्फ. आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, एवरीवन हु इज अटेम्प्टिंग दिस पेपर इज अ ह्यूमन बीइंग. एंड प्लीज बिलीव कि हाँ यार ये मैं कर जाऊंगा या कर जाऊंगी. सिंपल है, सिंपल है. कीप इट वेरी वेरी सिंपल टू योरसेल्फ. ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. आज का दिन है, कल का दिन है, क्या करना है, प्रैक्टिस क्यों करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रिविजन कर लिया, प्रैक्टिस किस चीज का करना है, इस चीज का करना है. आपका ये जो इंडिविजुअल पोर्टल है, दिस इज टेरिटोरियल आर्मीज इंडिविजुअल पोर्टल. ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अपलोड हो गए हैं. प्लीज प्रैक्टिस देम, प्लीज प्रैक्टिस देम इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, मैथ्स का पार्ट करते हो उसको उतने ही टाइम में करो, ज्यादा टाइम मत लगाओ. आपको they have given you on the individual portal, they have given you official previous year papers, almost 9 to 10 papers are there. आज का दिन है, कल का दिन भी है. प्रैक्टिस करके चले जाओ एंड दैट टू इन अ स्टुपुलेटेड टाइम, कि इतनी देर में मैं ये चीज करूंगा या करूंगी. सिंपल सी बात है. जो चीज नहीं आती है उसको स्किप करो, उसको लास्ट में देख लो कि क्या चीज पूछी गई है, क्या पैटर्न है. यू विल गेट योर सेल्फ एक्वेंटेड विद द एग्जामिनेशन पैटर्न. ऑलराइट, सो आई गेस आपको अभी तक समझ आ रहा होगा. And yes, be confident, guys. Be very, very confident. All right. Be very, very confident about yourself. Do not be overconfident. Do not be underconfident. Simple सी बात है, आपका माइंड का खेल है. Your mind is there. Your mind will keep you confident. If your mind is not there, your mind will keep you overconfident or underconfident. मजे से जाओ, मजे से पेपर दे के आओ. ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करो, जो चीज की है उसको सही करो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है. 40% in every section is required. So be okay with yourself. Accept your flaws, accept yourself. Okay, fine, पेपर है, आराम से पेपर दे के आएंगे. उसके बाद जो भी करना होगा, whatever you want to do, just do it. All right, be okay with yourself. ठीक है. एंड यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अवॉइड नेगेटिव टॉक. अवॉइड नेगेटिव टॉक. क्या होता है जनरली इट हैपेंस अमंग एवरी कैंडिडेट, अमंग एवरी स्टूडेंट. आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे होते हो, उससे पहले थोड़ा टाइम होता है, या आपके लेफ्ट में कोई इंसान होता है, या लेफ्ट में कोई या राइट में कोई होता है. तो जनरली आप नाम वाम पूछते हो. जनरली यू आस्क कि कितना प्रिपेयर किया है. अच्छा, मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, उसने ज्यादा प्रिपेयर किया है. सो जो आपका माइंड है उसको प्लीज अवॉइड करो कि आप ज्यादा बातें नहीं करो. अगला इंसान नहीं बताएगा, अगला पर्सन, द नेक्स्ट पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, ईदर ऑन योर लेफ्ट और योर राइट, will not tell you that how much you are capable of, will not tell you that you can do this paper or not, will not question your confidence. You have to believe in yourself. उसने जो करना है, लेफ्ट वाले इंसान ने या राइट वाले इंसान ने जो करना है करने दो. अपने ऊपर भरोसा रखो, शांत रखो दिमाग, पेपर को एज पेपर लेके चलो. बी प्रैक्टिकल इन पेपर. ठीक है, उसके बाद किसी इंसान से ज्यादा ज्यादा नेगेटिव बात मत करना. ठीक है, उसने बोल दिया कि यार ये पेपर तो होगा ही नहीं हमसे, ये बड़ा टफ है. डू नॉट डू दैट टू योर सेल्फ. बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए हो, बहुत अच्छा माइंड सेट रखा है, उसको वैसे ही रखो. डू अवॉइड नेगेटिव टॉकिंग विद पर्सन अराउंड यू. ठीक है, खुद कुछ आएगा या नहीं आएगा वो उनको भी नहीं पता, बट एटलीस्ट उनका उनका जो उनके जो थॉट्स हैं, दैट शुड नॉट डिफाइन योर केपेबिलिटी. their thoughts should not define your capability. All right, so believe in yourself, and yes, avoid negative talking, avoid talking more with people around you. All right, नॉर्मल बात करो कि क्या चल रहा है, अच्छा ठीक है तूने ये मूवी देखी, वट एवर यू वॉन्ट टू आफ्टर एग्जामिनेशन or before your examination, so that you keep your mind calm. Do that, but do not you do not question yourself on because of what, because of somebody else's thought. Simple. All right, keep it very very simple. So and yes, at the last, give your best. जो आता है उसको बहुत अच्छे से करो, जो नहीं आता है उसको एटलीस्ट ट्राई करके आओ, बिकॉज देर इज नेगेटिव मार्किंग. सिंपल है. ठीक है, अपना बेस्ट देके आओ, सो दैट जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलो, यू डोंट रिग्रेट इट. ऑल राइट, ठीक है जी. So I wish you all the very best, and I hope this video actually helps you a lot in your examination. And yes, very very important thing, guys, be in the flow. Be in the flow of the examination. Okay, I'll tell you one of my experience. That experience is that I was giving one OIR of Indian Coast Guard. I was at one selection board of Indian Coast Guard, and Indian Coast Guard में आपका time bound होता है, and एक question अगर skip हो गया है तो वो वापस नहीं आएगा, because everything is on the screen. ठीक है, so the thing is what I had in my mind, पहले आई वॉज गिविंग इट, थोड़े क्वेश्चन स्किप हो गए, बिकॉज दैट इज टाइम बाउंड. 20 seconds 25 seconds इतना रहता है ऐसा. ठीक है, तो
ऐसा हो सकता था कि मैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में भी ब्लंडर करके आती या स्पॉइल कर देती, बट आई सेड इट टू माई सेल्फ, ओके फाइन वसुधा, दिस क्वेश्चन, ये आपने थोड़े क्वेश्चंस गलत कर दिए या अटेम्प्ट नहीं किए या स्किप कर दिए, वट एवर इट इज, नेक्स्ट जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस वट एवर इज देयर ऑन द स्क्रीन, आई विल मेक इट श्योर कि मैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करूँ. एंड प्लीज बिलीव मी विद दिस फैक्ट गाइज, आई गॉट सिलेक्टेड इन टू दैट. So please make it sure that one question or two questions or 10 questions will not define your examination. It is basically how you attempt the next questions. ठीक है, जो चीज बर्बाद हो गई है उसको रहने दो, जो आगे आ रही है उसको अच्छे से करो, सिंपल सी बात है. अपना कॉन्फिडेंस एक से उठा के दूसरे पे रखना है. ठीक है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है, अपना अपने आप को confident रखना है. That is it for the video guys. Thank you so much and I hope that you guys you are really motivated as well as you see this video so that it helps you. एंड मोर ओवर गाइज, प्लीज जब आपका एग्जामिनेशन हो जाए प्लीज आके बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ, as well as please do let me know that whether you are able to perform really well and what are your mistakes in the comment box. All right, thank you so much guys and have a wonderful day ahead. Thank you so much. Jai Hind.